Hello मित्रों, I welcome all of you on my channel English by Hariom. Friends, I would like to solve today SBI PO PYQ English questions paper, and I without taking a second, let's start. तो यहाँ हम पैसेज से स्टार्ट करेंगे इसको। आज हम करीब करीब आपको 20 से 30 क्वेश्चंस 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ पैसेज होगा, कुछ जो आप देखिए क्या क्या इसमें रहता है आपको। तो देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हम पैसेज के पढ़ने की कोशिश करते हैं। पैसेज क्या मैं पूरा पैसेज पढ़ूँ या आप पढ़ लेंगे? ठीक है, तो हम सोचते हैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट देख लेते हैं, जहाँ जहाँ हम पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ लेंगे चारों तरफ से, हर स्टेंजा से कुछ ना कुछ पकड़ लेंगे हर लाइन से। The strength of a nation is often measured not only by its economic output but by the stability, resilience, and well-being of its people. And economic growth stems from the combination of the natural resources, infrastructure, governance, and the most critical investment in human capital. Countries that prioritize education and healthcare lay the foundation for long-term prosperity. A glaring truth in today's global economy is that wealth alone cannot secure sustainable growth. Natural resource-rich nations may enjoy short-term revenue surges, but without strong institutions and a skilled, healthy workforce, such progress risks becoming fragile. Education equips individuals with the skill needed for innovation, adaptability, and competitiveness. Healthcare, in turn, ensures that the citizens can contribute productively over the long term, reducing absenteeism and lowering the economic burden of disease. For example, some resource-dependent nations have taken steps to diversify their economies by filling the blanks by revenue into schools, training centers, hospitals, and public health programs. Angola in recent years has made efforts to invest in education and healthcare to reduce its dependency on oil exports. By enhancing human capital, it aims to strengthen productivity and attractive investment in sectors beyond its primary industries. While challenges remain, such measures show the potential for transforming short-term gains into lasting national strength. However, the global economic environment remains uncertain. Trade disruptions, fluctuating commodity prices, and geopolitical tensions can stall development plans. Even in countries with ambitious social investment strategies, a grim example is when external shocks force government to cut back on essential public spending, undermining years of progress in education and health sectors. The capacity to withstand such shocks depends heavily on diversified economic and robust fiscal planning. National strength, therefore, is not built overnight. It requires consistent policies, transparent governance, and the vision to balance immediate economic needs with long-term development goals. By fostering a population that is educated, health, and capable of innovation, nations can ensure resilience in the face of global uncertainty. In conclusion, economic growth flourishes when it rests on solid social foundation. Investments in human capital through education and healthcare are not only moral imperatives but strategic economic decisions. Whether resource-rich or resource-poor nations that prioritize these areas strengthen their position in the world and secure prosperity for future generations. तो ये आपका पूरा पैसेज हुआ, वर्ल्ड से, इकोनॉमिक से, इस सब से जुड़ा हुआ है ये। और देखते हैं इसमें क्या आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज की लिमिटेशन ऑफ रिलाइंग स्लोली ऑन नेचुरल रिसोर्स वेल्थ। नेचुरल रिसोर्स वेल्थ पर अगर आप एक ही मतलब केवल नेचुरल रिसोर्स वेल्थ है उस पर आप केवल रिलाई करेंगे तो उससे क्या हानि होगा आपको, उसके लिमिटेशंस क्या होंगे। तो पैसेज के अनुसार आपको बताना है कि लिमिटेशन क्या होगा उसका। तो हम देखते हैं। तो इट इंकरेजेज ओवर प्रोडक्शन एंड कॉज कंसिस्टेंट प्राइस हाइक्स इन इंटरनेशनल मार्केट। ऐसा होता है क्या कि अगर नेचुरल रिसोर्स वेल्थ पर आप स्लोली रिलाई करेंगे तो उसका लिमिटेशन होगा कि ओवर प्रोडक्शन करेंगे आप, कंसिस्टेंट प्राइस हाइक हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, ये सब होता है, ये सब इंकरेज करेगा। ये गलत है, यहाँ ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है। और दूसरा हमारा बी है कि इट रिजल्ट्स इन निगलेक्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन हु रिलाई ऑन एग्रीकल्चर। इट रिजल्ट्स इन निगलेक्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, जो हमारा
एग्रीकल्चर पर रिलाई करता है वो रूरल पॉपुलेशंस को निगलेक्ट करने का परिणाम, माने एक तरह से रूरल पॉपुलेशन को निगलेक्ट करता है। ये निगलेक्टिंग इट रिजल्ट्स इन निगलेक्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन हु रिलाई ऑन एग्रीकल्चर। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। इसी है हमारा, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म गेन्स बट फेल्स टू रिबिल्ड इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथ। ये क्या करता है कि इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म गेन्स, ये शॉर्ट टर्म गेन्स को प्रोवाइड करता है बट फेल्स टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथ। ये ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथ को और इंस्टीट्यूशनल बिल्ड को, इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने में फेल हो जाता है। तो इसलिए तो आगे देखते हैं क्या है हमारा। डी ऑप्शन है, इट रिड्यूसेस द नीड्स फॉर गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड हिंडर्स डिप्लोमेटिक रिलेशन। यह जो है हिंडर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हिंडर्स करता है एंड गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए ये ज़रूरतों को रिड्यूस करता है, घटाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। इट इंश्योर्स दैट कंट्रीज फोकस एक्सेसिवली ऑन एजुकेशन एंड इग्नोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ऐसा है क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ये इग्नोर करता है, एजुकेशन को एक्सेसिव फोकस करता है कंट्री में, ये ऐसा इंश्योर करता है क्या? तो इसमें से आपको एक ही जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है जो एप्रोप्रिएट आंसर है, जो पैसेज में दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात है। तो नेचुरल रिसोर्स वेल्थ, इसमें कहाँ नेचुरल रिसोर्स वेल्थ का बात किया है? नेचुरल रिसोर्स वेल्थ का बात किया है इसमें, आपको बात किया है नेचुरल रिसोर्स वेल्थ का बात किया इसमें, नेचुरल रिसोर्स वेल्थ का बात किया इसमें। इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेम्स फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस, द मोस्ट क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीज दैट प्रायोरिटाइज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। क्या किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेम्स कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो यहाँ नहीं है इसका। नेचुरल रिसोर्स ग्रोथ इकोनॉमिक, यहाँ पे देखिए नेचुरल रिसोर्स रिच नेशन, यहाँ लिखा हुआ ना नेचुरल रिसोर्स रिच नेशन, नेचुरल रिसोर्स रिच नेशन। नेचुरल रिसोर्स रिच नेशंस में enjoy short-term revenue surges but without strong institutions and a skilled healthy workforce, such progress risk becoming fragile। यहीं की बात वहाँ पूछा गया है कि नेचुरल रिसोर्स रिच नेशंस में enjoy short-term revenue surges, short-term revenue सर्च करता है but without strong institutions and a skilled and healthy workforce, such progress risk becoming fragile। जो होता है इंस्टीट्यूशन एंड फ्रेजाइल हो जाएगा, जो सच ऐसे में प्रोग्रेस रिस्क में आ जाएगा और फ्रेजाइल हो जाएगा। तो यही बात तो यहाँ कहा हुआ है। दूसरे मतलब उसका लैंग्वेज दूसरा है, लैंग्वेज उसका इस तरह से है कि ये सी नंबर आप देखिए, सी ऑप्शन देखिए कि सी में इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म गेन्स बट फेल टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथ। इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथ को ये प्रोवाइड करता है। It provides short-term gains but fails to build institutional and human capital strength। ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथ और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को इस पर यह बात किया है, तो ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। यहीं आपका सी ऑप्शन होगा इसका। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर एंड डिस्क्राइब इन पैसेज में हेल्थ केयर पर जो इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट, प्राइमरी बेनिफिट के बारे में क्या कहा गया उस पर समझते हैं। तो हेल्थ केयर कहाँ बात किया गया उसमें देखते हैं यहाँ पे। इसमें हेल्थ केयर वहाँ एजुकेशन हो गया, यहाँ फिर हेल्थ केयर। हाँ, इन टर्न हेल्थ केयर सर्विसेज दैट सिटीजन्स कैन कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली ओवर द लॉन्ग टर्म, रिड्यूसिंग absenteeism एंड लोअरिंग द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिजीज। आप देखें ना यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेल्थ केयर इन टर्न द सिटीजन्स को इंश्योर करता है कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली और कंट्रीब्यूट करेंगे लॉन्ग टर्म तक, और उसके जो अपसेंट होने का और जो इकोनॉमिक डिजीज़ के इकोनॉमिक बर्डन को ये लो करेगा। तो इससे मिलता जुलता है कि यहाँ पे आपका सेंटेंस मिल जाएगा। तो बी में होगा आपका ये रिड्यूसिंग पॉपुलेशन साइज थ्रू बेटर फैमिली प्लानिंग एंड अर्बन माइग्रेशन तक कहीं बात नहीं सकती है। इंश्योर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिवली बाई लोअरिंग डिजीज बर्डन एंड अपसेंटिज्म, यही होगा। तो आगे भी देख लेते हैं और कोई होता नहीं। इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल टूरिज्म में बिल्कुल मैंने बात दूसरे तरह का है। रिडायरेक्टिंग पब्लिक फंडिंग फ्रॉम एजुकेशन टू डिजीज सर्विलेंस, ई में है हमारा ऑप्शन में। अचीविंग बेटर डिप्लोमेटिक टाइज थ्रू ग्लोबल मेडिकल कोलैबोरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका आंसर होगा बी, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बाय लोअरिंग डिजीज बर्डन एंड एब्सेंटिज्म। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हमारा बी आंसर होगा। 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल स्ट्रेंथ एज पर द पैसेज।
पैसेज के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग जो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इसमें से जो नॉट ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करने का फैक्टर नहीं है। तो इसमें कौन सा है आप देखिए, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, क्या ये है? नहीं है, यह है, बिल्कुल है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस दैट इंश्योर कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी मेकिंग और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए, ये है या नहीं है? ये भी है, लेकिन वो नहीं कह रहा है, तो इसलिए ये गलत है, यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। हाउ डिपेंडेंस ऑन सिंगल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये है कि आप सिंगल ओरिएंटेड सेक्टर पर, आप सिंगल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पर आप इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिलाई करेंगे तो हाई डिपेंडेंसी रखेंगे, तो आपका यही है, ये फैक्टर नहीं है। तो आपका इसका आंसर हुआ सी ओनली, यानी सी, ऑप्शन सी ओनली। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज के बेस पर एक करेक्ट ऑप्शन इसमें आइडेंटिफाई करना है और उसका आंसर देना है। तो अंगोला हैज़ बीन अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल बाय इन्वेस्टिंग इन पीपल। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज मेक सोशल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ रिस्की एंड अनवाइज। ऐसा है क्या कि अगर हम एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट करेंगे तो सोशल में रिस्क और अनवाइज बुद्धिमान को मतलब मूर्खता को दिखाएगा। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन प्ले बोथ मॉरल एंड इकोनॉमिक रोल्स इन नेशनल डेवलपमेंट पे हेल्थ केयर और एजुकेशन प्ले बोथ मॉरल एंड इकोनॉमिक रोल्स इन नेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें से हमको लगता है कि आप खुद जानते हैं वहाँ जिस तरह से अंगोला की बात किया, दिखाते हैं आपको अंगोला, यहाँ बात हुआ है अंगोला के बारे में, बाई फोस्टरिंग एंड पब्लिक हेल्थ एंड अंगोला का बात हुआ है भाई। इसमें अंगोला कहाँ बोला, अंगोला देखिए यहाँ है ना, अंगोला इन रिसेंट ईयर्स हैज मेड एफर्ट टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ बात हुआ है, तो यहीं इसको हम रखेंगे। तो इसमें हमारा 4 नंबर है ना, तो अंगोला वाला सही हो गया, ए ऑप्शन सही है, और ए के बाद सी ऑप्शन सही है, इसके बाद बी गलत है। तो इसका आंसर हुआ ए एंड सी, यानी बी यहाँ दिख रहा है ना, ए एंड सी। 5 जो है हमारा क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ग्लेरिंग एज यूज इन पैसेज में ग्लेरिंग का यूज किस लिए हुआ है और उसको यहाँ कौन सा उसके लिए ऑब्वियस है, कौन सा उसका मतलब अप्रोप्रिएट आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसमें ग्लेरिंग का यूज कहाँ हुआ है, पैसेज में दिखाते हैं आपको। देखिए, ग्लेरिंग ट्रूथ इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी इज दैट वेल्थ एलोन कैन नॉट सिक्योर सस्टेनेबल ग्रोथ। ग्लेरिंग ट्रूथ का मतलब होता है ऑब्वियस ट्रूथ, स्पष्ट। तो ऑब्वियस यहाँ इसका एक में है, फर्स्ट है, इसका आंसर सही हुआ। ग्लेरिंग यूज्ड इन पैसेज ऑब्वियस के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए ऑब्वियस हुआ यहाँ, इसका आंसर ए आंसर हुआ। इसका हिडन नहीं होगा, सबसेल नहीं होगा, डिसमिसल नहीं होगा, और मॉडरेट भी नहीं होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड स्टॉल एज इन यूज। स्टॉल का यूज किस लिए हुआ है पैसेज में, यहाँ देखते हैं स्टॉल का यूज किस लिए हुआ है। स्टॉल का यूज पैसेज में किस लिए हुआ है, स्टॉल आपको दिया जहाँ स्टॉल, यहाँ ट्रेड डिसरप्शन, फ्लक्चुएटिंग कमोडिटी प्राइसेस एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैन स्टॉल डेवलपमेंट प्लान्स इवन इन कंट्रीज विद एम्बेसिस सोशल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। तो यहाँ बात कर रहे हैं स्टॉल कैन स्टॉल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी ट्रेड डिसरप्शंस, फ्लक्चुएटिंग कमोडिटी प्राइसेस एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये क्या करते हैं, कैन स्टॉल डेवलपमेंट प्लान्स, माने स्टॉल माने डिले करना या रोकना, प्रिवेंट करना या दिक्कत पहुंचाना। तो इसलिए स्टॉल का यहाँ यूज किसी चीज़ को प्रिवेंट करने, रोकने के लिए हुआ है। तो इसलिए हम इसका यूज यहाँ देखेंगे तो क्या होगा हमारे लिए, तो यहाँ होगा एकदम अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा डिले। प्रमोट तो नहीं होगा, प्रमोट डेवलपमेंट प्लान जब फ्लक्चुएट करेगा मार्केट और ये आपका वहाँ जिस तरह के स्टेटमेंट लिखा हुआ उसके अनुसार प्रमोट नहीं होगा, इंकरेज भी नहीं होगा, फाइनलाइज भी नहीं होगा, गारंटी भी नहीं होगा, तो इस डिले होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डिले, ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर 7 नंबर जो देखते हैं, चूज द मोस्ट सूटेबल वर्ड फॉर द गिवन फिलर जो कि दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स में, उसमें कौन सा इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है जो सूटेबल वहाँ करता है। होर्डिंग है, डाइवर्टिंग है, एक्सहाउस्टिंग है, कैंसिलिंग है। होर्डिंग मैंने किसी चीज़ को होल्ड करना, संचय करना, डाइवर्ट मैंने उसको चेंज करना, एक्सहाउस्ट मैंने उसको और एक्सहाउस्टिंग करना मतलब आगे बढ़ाना, कंसीलिंग मैंने छुपाना, चैनलिंग मैंने उसको चैनलाइज करना। तो इसमें से कौन सा वहाँ सूटेबल है, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इसमें कहाँ है। फिल इन द ब्लैंक्स आपका
यहाँ है, देखिए यहाँ वाला पार्ट, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें देखते कहाँ स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल सम रिसोर्स डिपेंडेंट नेशंस हैव टेकन स्टेप्स टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमीज बाय fill in the blanks revenue into schools, training center, hospitals and public health programs। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए सम रिसोर्स डिपेंडेंट नेशन, कुछ रिसोर्स पर आत्मनिर्भर, कुछ रिसोर्स पर निर्भर रहने वाले राष्ट्र जो है, हैव टेकन स्टेप्स टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमीज, अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के कुछ स्टेप लिए हैं। बाई रेवेन्यू को इनटू स्कूल्स में, ट्रेनिंग सेंटर्स पे, हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम पे। तो बाई चैनलिंग रेवेन्यू को चैनलाइज करके उसको स्कूल में चैनलाइज कर दिया, चैनलिंग कर दिया, यही ना। यहाँ पे देखिए क्या है, चैनलिंग है ना, चैनलाइज है, चैनलिंग है हमको लगता है, चैनलिंग। रेवेन्यू को चैनलिंग यहाँ कहाँ कर दिया, स्कूल में, ट्रेनिंग सेंटर्स में, वहाँ कर दिए। तो उससे वहाँ के लिए अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ चैनलिंग होगा, ये सब नहीं होगा। होर्डिंग थोड़ी होगा, संचय थोड़ी करेगा, डाइवर्ट थोड़ी करेगा, चैनलिंग सबसे बेस्ट है। डाइवर्ट मैंने एक चीज़ को दूसरे चीज़ मतलब, जबकि वहाँ स्कूल ट्रेनिंग बहुत सारा है, तो इसलिए डाइवर्टिंग नहीं होगा। एक्सहाउस्टिंग तो होगा नहीं, कंसीलमेंट छुपाएगा तो नहीं। चैनलिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द क्वेश्चंस, यानी आंसर इज ई करेक्ट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर वर्ड ग्रीम एज यूज्ड इन द पैसेज में ग्रीम का यूज किस लिए हुआ है और उसका एंटोनिम यहाँ पे क्या होगा। हार्श, ब्राइट, सीरियस, ग्लूमी एंड ब्लैक। देखते हैं ग्रीम का यूज किस लिए हुआ पैसेज में। ग्रीम देखिए यहाँ है ग्रीम, आपको यहाँ दें ए ग्रीम एग्जाम्पल इज व्हेन एक्सटर्नल शॉक्स फोर्स गवर्नमेंट्स टू कट बैक ऑन एसेंशियल पब्लिक स्पेंडिंग, अंडरमाइनिंग ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। तो हेल्थ सेक्टर्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ ग्रीम एग्जाम्पल कर रहा है। ए ग्रीम एग्जाम्पल इज व्हेन एक्सटर्नल शॉक्स फोर्स गवर्नमेंट्स टू cut back on essential public spending and undermining years of progress in education and health sectors। एक ग्रीम एग्जाम्पल मतलब एक हार्श एग्जाम्पल, यहाँ दूसरे तरह का इस्तेमाल हुआ है, एक विकट एग्जाम्पल है ये। तो ग्रीम का यहाँ सबसे अच्छा यूज होगा। हार्श से भी यहाँ सूटेबल, हार्श तो हो सकता है कुछ, हार्श तो उसका सिनोनिम्स है, लेकिन एंटोनिम्स खोजना है इसका। तो हार्श, ग्लूमी और ब्राइट थोड़ा है इसका, हार्श और ग्लूमी इसका सिनोनिम्स है, लेकिन हमको एंटोनिम्स खोजना है। तो यहाँ ग्लूमी तो भी उसका, हार्श भी उसका सिनोनिम्स है, ब्राइट थोड़ा है एंटोनिम्स, लेकिन पूरा नहीं है, सूटेबल भी वहाँ नहीं होगा, सीरियस बिल्कुल नहीं है, ग्लूमी भी वहाँ उसका सिनोनिम्स है। तो ब्लैक इसका एग्जाम्पल होगा, ब्लैक माने होता है उसका एंटोनिम्स होगा। सुस्पष्ट। तो आपका 8 का जो ऑप्शन हुआ आपका ई। 9 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, 9 में क्या है, ए वर्ड हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन एंड यूज्ड इन द सेंटेंस बिलो, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स वेयर द वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर। तो देखते हैं यहाँ ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट क्या है इसमें। तो गेट यहाँ दिया हुआ है। गेट का मतलब सबसे पहले जानना है आपको कि गेट क्या, इसका अर्थ क्या होता है, गेट का मीनिंग क्या होता है। तो गेट का मतलब होता है कि किस चीज़ को परखना उसके चाल ढाल से जान करके। तो यहाँ देखिए गेट माने परखना होगा यहाँ। तो द सिक्योरिटी गार्ड स्टूड एट द स्कूल गेट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ विजिटर्स। तो यहाँ गेट, स्कूल गेट GAT वाला होगा। तो स्पेलिंग यहाँ मिस कर रहा है, यहाँ मिस का इनकरेक्ट है, तो यहाँ ही होगा नहीं। डॉक्टर असेस्ड द पेशेंट्स गेट टू चेक फॉर एनी साइंस ऑफ मोबिलिटी इशूज़। मोबिलिटी इशू मैंने द डॉक्टर असेस्ड द पेशेंट्स गेट, डॉक्टर ने पेशेंट्स के गेट के चाल ढाल को असेस्ट किया, मूल्यांकन किया, एंड चेक फॉर एनी साइंस ऑफ मोबिलिटी इशू। मोबिलिटी इशू कि उनके क्या मोबिलिटी इशू है, इसके साइन को उन्होंने चेक किया। तो इसके ये वाला हमको लगता है कि अप्रोप्रिएट है। और 3 नंबर में क्या है, द एंट्रेंस गेट टू द पार्क was decorated with colorful lights for the festival। entrance gate गेट दरवाजा वाला है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। यानी यहाँ ऑप्शन हुआ आपका only 2 यानी only B। 10 नंबर क्या है आपका, वहीं उसी तरह का ये भी है, इसमें भी कंटेक्चुअली ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर में उसको यूज़ करना है। और अप्रोप्रिएट कहाँ पर है, काउंसिल मैंने होता है किसी को परामर्श देना, सुझाव देना, सलाह देना। द साइकियाट्रिस्ट ऑफर्ड काउंसिल टू हेल्प द पेशेंट कोप विद एंजाइटी एंड इमोशनलेस डिस्ट्रेस। तो यहाँ काउंसिल का मतलब यहाँ ऑफर्ड काउंसिल मैंने परामर्श दिया,
तो यहाँ सही है ये। तो म्यूनिसिपल काउंसिल, यह काउंसिल होगा, काउंसिल नहीं होगा, इसलिए इनकरेक्ट है, इसलिए गलत है। सी साउट लीगल काउंसिल बिफोर साइनिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर हर इंटरेस्ट यूर प्रोटेक्टेड। तो कहता है कि सी उसने लीगल काउंसिल मांगा, उसने जो कानूनी परामर्श मांगा बिफोर साइन द कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले, टू इंश्योर हर इंटरेस्ट यूर प्रोटेक्टेड, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड हो सके। तो इसको लेकर के यहाँ लीगल काउंसिल और साइकेट्रिस्ट ऑफर्ड काउंसिल, ये दोनों काउंसिल ठीक है, यहाँ दोनों परामर्श के लिए यूज हुआ है। तो दोनों यहाँ ए एंड सी इज करेक्ट और बी इज इनकरेक्ट। बिकॉज यहाँ काउंसिल है, COUNCIL होगा, यहाँ काउंसिल वाला होगा, परिषद के लिए होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ पे ए एंड सी। ए एंड सी कहाँ है? ए एंड सी बोथ ई। तो ई इज करेक्ट आंसर, यानी बोथ ए एंड सी। 11 नंबर में देखते हैं क्या है मित्रों। 11 नंबर एक प्रकार का, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक ईच ऑफ फॉलोइंग विल डिनोटेड बाय लेटर। एक लेटर के द्वारा उसमें फिल करना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ऑप्शन दैट फिट द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। उस जो ब्लैंक है उसमें अप्रोप्रिएट फिट करे, तो इस ऑप्शन को इसमें से चूज करना है। तो देखते हैं क्या है। द कंट्रोल यूज ऑफ फायर रिप्रेजेंटेड वन ह्यूमैनिटीज मोस्ट टेक्निकल ब्रेक थ्रूज। माने द कंट्रोल यूज ऑफ फायर, जो मतलब एकदम कंट्रोल, नियंत्रित फायर का इस्तेमाल, नियंत्रित अग्नि उपयोग रिप्रेजेंट, ये दिखाता है, ये प्रदर्शित करता है कि वन ऑफ ह्यूमैनिटीज मोस्ट, ये मानव का सभी वन ऑफ ह्यूमैनिटीज मोस्ट टेक्निकल ब्रेक थ्रू। तो यहाँ टेक्निकल मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? यहाँ ट्रिवियल तो होगा नहीं, ट्रिवियल का दूसरा होता है, और ट्रिवियल और नेग्लिजिबल दोनों एक ही शब्द है। तुच्छ। रिडंडेंट तो यहाँ दूसरा न होगा नहीं, रिडंडेंट का मतलब दूसरा होता है। डेरिवेटिव यहाँ करेक्ट नहीं है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा सेमिनल। सेमिनल मतलब कि मोस्ट फ्रूटफुल, यानी वन ऑफ ह्यूमैनिटीज मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा यहाँ मोस्ट सेमिनल टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। मतलब कंट्रोल यूज ऑफ फायर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ ह्यूमैनिटीज मोस्ट सेमिनल टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज। उसका सेमिनल हो गया, यहाँ बी ऑप्शन होगा, सेमिनल यानी बी। दूसरा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव आवर एंसेस्टर्स फर्स्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है वो बिलीव करते हैं आवर एंसेस्टर्स फर्स्ट, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव आवर एंसेस्टर्स फर्स्ट फायर नेचुरली कॉज्ड बाई लाइटनिंग स्ट्राइक्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी और लाइटनिंग स्ट्राइक के द्वारा के कारण नेचुरली, मतलब प्राकृतिक तौर पर वो फायर के, हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसा विश्वास करते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी और लाइटनिंग, माने जो बिजली गिरने के द्वारा ही, मतलब स्वभावतः वो आग के बारे में प्रथम बार जाने या सूत्रपात हुआ। पहली बार सूत्रपात में प्रथम उसका उत्पन्न हुआ, वहीं से वो प्रारंभ हुआ उसका दौर। तो यहाँ इसके लिए क्या होगा? यहाँ मोस्ट फर्स्ट बी में क्या होगा? फर्स्ट इसका होगा फर्स्ट मोस्ट एक्सटिंग्विश्ड, माने बुताना। हार्नेस्ट दूसरा चीज़ होता है। स्क्वेंडर्ड भी यहाँ नहीं हुआ। सर्कमविनेट माने उसको सर्कल करना, इनसर्कल करना। डेप्रिकेटेड यहाँ सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। डेप्रिकेटेड में सूत्रपात होना या वहाँ से स्टार्ट होना, फर्स्ट यूज होना एक प्रकार के। डेप्रिकेटेड यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट है, तो यहाँ ऑप्शन होगा बी, माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव आवर एंसेस्टर्स फर्स्ट डेप्रिकेटेड फायर नेचुरली कॉज्ड बाई लाइटनिंग स्ट्राइक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी। हमारा सी है। दिस एक्सीडेंटल डिस्कवरी इवेंचुअली लीड टू द ब्लैंक्स ऑफ टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग फ्लेम्स। तो इसका क्या होगा? दिस एक्सीडेंटल डिस्कवरी इवेंचुअली लीड टू द, मतलब यह अचानक आविष्कार जो है इवेंचुअली लीड टू द टेक्निक फॉर क्रिएटिंग मेंटेनिंग फ्लेम्स क्रिएटिंग और मेंटेनिंग फ्लेम्स की टेक्निक को। तो इसके लिए यहाँ ऑप्शन होगा आपका डिजोल्यूशन, किसी को डिजोल्व करना। रिवोकेशन दूसरा चीज़ है। कल्मिनेट करना, किसी दो चीज़ को उसमें कल्मिनेट, जैसे ये केमिकल कल्मिनेशन उसमें आता है। प्रोहिबिशन, किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, स्टॉप करना। इंसेप्शन माने किसी चीज़ को बिगिनिंग करना। तो इंसेप्शन इज करेक्ट, इंसेप्शन यहाँ करेक्ट है इसका, बिकॉज डिजोल्यूशन तो होगा नहीं। रिवोकेशन तो दूसरा चीज़ है, रिवोकेट करना या जनरेट करना। और इंसेप्शन से यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ 13 का सी जो है हमारा, उसका
This accidental discovery eventually led to inception of techniques for creating and maintaining films. इंसेप्शन यानी ई 13 का ऑप्शन ई हमारा होगा। फिर 14 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल फिट, वही चीज़ है, पैसिफाइड, ट्रांसम्यूट, स्टेबलाइज्ड एंड स्टेरलाइज्ड। पैसिफाइड मतलब अब दूसरा चीज़ होता है पैसिफाइड। ट्रांसम्यूट देखते हैं क्या है वहाँ, किस तरह का भरना है। डी में क्या है, अर्ली ह्यूमंस लाइकली नोटिस हाउ वर्ल्ड फायर्स देयर इन्वायरमेंटल बोथ फ्राइटनिंग एंड फैसिनेटिंग देम। अर्ली ह्यूमन लाइकली नोटिस हाउ वाइल्ड फायर ने कैसे देयर इन्वायरमेंट और बोथ फ्राइटनिंग एंड फैसिनेटिंग देम, जो फ्राइटनिंग डर को, फैसिनेटिंग को, दोनों को इन्वायरमेंट के द्वारा अपने इन्वायरमेंट से कैसे वाइल्ड फायर को ये कैसे नोटिस, देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन क्या है, या क्या फिट होगा। तो यहाँ ये फिट होगा आपका स्टेरलाइज्ड। स्टेरलाइज्ड इसलिए होगा कि आप देखिए स्टेरलाइज इसका ऑप्शन मैंने ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि अर्ली ह्यूमंस थे वो लाइकली नोटिस्ड, ये संभवतः नोटिस किया कि हाउ वाइल्ड फायर ने कैसे, और वाइल्ड फायर ने जो आग है, जंगल की आग ने कैसे क्या किया कि स्टेरलाइज किया देयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट को स्टेरलाइज किया। स्टेरलाइज मतलब होता है उनके इन्वायरमेंट को कैसे स्टेरलाइज किया, गवर्नमेंट को कैसे स्टेरलाइज किया, कैसे स्टेरलाइज होने के पर स्टेरलाइजिंग दूसरा एक वर्ड, इन्वायरमेंट को कैसे स्टेरलाइज किया, स्टेरलाइजिंग देयर इन्वायरमेंट बोथ। तो यहाँ स्टेरलाइजिंग फिट होगा ऑप्शन ई में क्या होगा, द फर्स्ट इंटेंशनल यूज ऑफ फायर फॉर वार्मथ एंड प्रोटेक्शन मार्क्ड मोमेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन। कहता है कि द फर्स्ट इंटेंशनल यूज ऑफ फायर फॉर वार्मथ एंड प्रोटेक्शन मार्क्ड मोमेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन में इंटेंशनली प्रोटेक्शन, देखते हैं इसका क्या ऑप्शन होगा। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल फिट फॉर प्लान, परफेक्टरी, पिवटल, आर्बिट्ररी, नॉमिनल, स्पोरेडिक। इसका परफेक्ट देखिए सबका पहले, तो इसका आपका ऑप्शन होगा जैसे परफेक्टरी मतलब होता है कि डिसइंटरेस्टेड, असावधान जैसे हो गया। पिवटल मैंने होता है एकदम ब्रेक थ्रू, मैंने पिवटल में एकदम क्रूशियल होता है। आर्बिट्ररी मैंने कोई चीज़ को एमलेस करना, रैंडम करना। नॉमिनल में नामात्र, और स्पोरेडिक मैंने होता है आपका ये कैजुअल और फिटफुल। तो इस तरह के हम देखेंगे तो यहाँ सबसे अगर परफेक्ट कोई वर्ड होगा तो पिवटल होगा। देखिए आपको भी दिखाते हैं कैसे पिवटल परफेक्ट वर्ड यहाँ यूज होगा। जैसे द फर्स्ट इंटेंशनल यूज ऑफ फायर फॉर वार्मथ एंड प्रोटेक्शन मार्क्ड ए पिवटल मोमेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन में एक मतलब एक पिवटल मोमेंट क्या, एकदम क्रूशियल मोमेंट था वो। ओवर मिलेनिया our ancestors developed increasingly sophisticated methods to fill in the blanks. This powerful element fundamentally changing the course of civilization. Over millennia, our ancestors developed increasingly sophisticated methods to fill in the blanks. इसमें जानते हैं क्या होता है ऑप्शन इसका। Which of the following word will fit and given? मैनिपुलेट करना, सप्रेस मन लैंग्वेज में त्यागना, कंटामिनेट मैंने अशुद्ध करना, और डिसमेंटल मैंने ध्वस्त करना। तो देखते हैं यहाँ क्या होगा, मैनिपुलेट हमको लगता है क्या होगा, सप्रेस, लैंग्वेज, कंटामिनेट, और डिसमेंटल तो होगा नहीं, मैनिपुलेट यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं तो यहाँ क्या होगा आपका, ओवर मिलेनिया आवर एंसेस्टर्स डेवलप्ड इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड मेथड्स। Over millennia, our ancestors developed increasingly sophisticated methods to this powerful element fundamentally changing the course of civilization. Civilization के कोर्स को ये बताएगा। जैसे आपको देखते हैं over millennia, our ancestors यहाँ होगा over which of the following, यहाँ मैनिपुलेटेड होगा, यहाँ मैनिपुलेट होगा आपका, उसका सही ऑप्शन होगा मैनिपुलेट sophisticated method to manipulate this powerful element fundamentally changing the course of civilization के कोर्स को ये मैनिपुलेट कर दिया। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ मैनिपुलेट ए। अब हम चलते हैं अगला। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर। इसमें से वैसे पार्ट को हमें चूज करना है जिसमें एरर है। जैसे neither the supervisor nor the workers has received the updated safety manuals from the administration yet.
तो इसमें आपका ऑप्शन रहा नीदर द सुपरवाइजर नॉर द वर्कर्स। इसमें जानते हैं नीदर और नॉर जहाँ यूज होता है उसमें जो उसके निकट वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वहाँ वर्ब भी यूज होता है। जैसे यहाँ हैज़ है तो यहाँ हैज़ ना होकर के हैव होगा, हैव रिसीव्ड, तो यहाँ बी जो है इनकरेक्ट है। फिर देखते हैं he had she studied more attentively she will have cleared the entire test। had she studied more attentively तो she will have cleared द एंट्रेंस टेस्ट, वह एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर देती है। इस तरह का सेंटेंस एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में जब यहाँ दिया हुआ है स्टडीड तो वहाँ विल ना होकर के वुड होगा। तो इसलिए यहाँ जो हैड से स्टडीड में क्या होगा मोर कि यहाँ इसलिए विल ना होकर के वुड हो जाएगा। तो सी यहाँ ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ सी, करेक्ट सी हुआ। फिर द मैनेजर इंसिस्टेड that the reports we submitted before noon as punctuality was something is considered to be। तो considered to be यहाँ है, तो देखते हैं क्या होगा considered to be। मैनेजर इंसिस्टेड ये तो सही है, that the report we submitted ये भी सही, before noon as punctuality was something considered to be। ये सेंटेंस हमको अधूरा लग रहा है, सेंटेंस मुझे यहाँ अधूरा लग रहा है, तो अधूरा सेंटेंस लग रहा है इसलिए डी हो गया यहाँ पे, डी was something he considered to be, तो यहाँ डी जो है something was something he considered to be, तो यहाँ डी जो है इसमें अधूरा लग रहा है, इसलिए डी यहाँ इनकरेक्ट है। कि यहाँ ऐसे होना चाहिए was something he was considered, punctuality was something was considered to be। यहाँ थोड़ा सा यहाँ सेंटेंस डी में ये इसलिए डी इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन मिला लीजिएगा लेकिन आपको लग जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द अदर पार्ट। अगला देखते हैं क्या है। The officer was unaware that his assistant had already submitted the documents before he reached the office। तो इसमें क्या, the officer was unaware, ऑफिसर अनवेयर था, that his assistant had already submitted the documents before he reached the office। यहाँ जो है यहाँ भी डी गलत है, क्योंकि before he reached सब जब सेंटेंस was है तो यहाँ had है, तो ये पास्ट में है ना, तो यहाँ reached होना चाहिए, तो इसलिए ये डी यहाँ भी गलत है, बिफोर ही रिच द ऑफिस, तो डी ऑप्शन यहाँ भी। फिर यहाँ देखते हैं he was neither interested in opera nor he wanted to spend money on concert tickets, नो एरर। तो इसमें देखते हैं ही वॉज नीदर इंटरेस्टेड इन ओपेरा और नॉर ही वांटेड टू स्पेंड मनी ऑन द कंसर्ट टिकट्स। कंसर्ट टिकट्स के बारे में बात करता है, तो यहाँ आपको देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ वाज नीदर, तो जबकि यहाँ नॉर ही डिड वांट, यहाँ उसके बाद तुरंत आता है यहाँ ये आप जब ग्रामर पढ़िएगा तो नीदर और नॉर में जब वो शुरू में है तो उसके जो उसका जो वर्ब उस प्लेस पर होता है जो उसका आगे, जिससे एक सेंटेंस आपको हम दिखाए हैं, यहाँ देखिए 1 या 2 नंबर पर था वो, नीदर द सुपरवाइजर, हाँ देखिए नीदर द सुपरवाइजर नॉर द वर्कर्स, तो वर्कर्स के नीदर द के बाद फिर नाउन आया, फिर नॉर द वर्कर्स नाउन आया, तब वर्ब आया। यहाँ स्थिति कुछ दूसरे तरीके का है, यहाँ ही वाज पहले में सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर नीदर इंटरेस्टेड इन ओपेरा, नॉर तो यहाँ क्या होगा, इससे पहले भी वर्ब आना चाहिए, डिड नॉर ही वांट टू स्पेंड मनी, तो इसलिए यहाँ बी में ही इनकरेक्ट है, बी यहाँ इसका इनकरेक्ट हुआ, नॉर के पहले आना, इससे यहाँ नीदर ही वाज नीदर इंटरेस्टेड इन ओपेरा एंड डिड नॉर ही वांट, तो डिड यहाँ आना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस बी इनकरेक्ट है। आप इसको हम पढ़ाएंगे पूरा कैसे इसका होता है, तो यहाँ बी यहाँ करेक्ट हुआ। देखते हैं आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट द नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। तो वर सी टू डिस्क्लोज द ट्रूथ, द इंटायर कमिटी वुड बी इन डिसायर, तो वर सी टू डिस्क्लोज द ट्रूथ, ये कंडीशनल एक सेंटेंस है, यदि वो ट्रूथ डिस्क्लोज करती तो
पूरा कमिटी डिसहरे हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ आपको ये होगा, यहाँ जो है इंटायर कमिटी, यहाँ तो कोई गलती नहीं दिखाई दे, इसलिए नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ ई होगा इसका ऑप्शन ई होगा 22 का ई, क्योंकि कहीं भी इफ़ सी डिस्क्लोज द ट्रूथ, इफ़ कोई मतलब नहीं है वहाँ, कंडीशनल सेंटेंस से इफ़ का कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, पूरा यहाँ नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड ई होगा इसका ऑप्शन करेक्ट 22 का। 23 देखते हैं, 23 में इट इज़ इसेंशियल दैट एवरी एथलीट कंप्लीट्स देयर रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेडलाइन, essential that कि every athlete completes their registrations before deadline, डेडलाइन के पहले रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो ये गाइडलाइंस है, तो इसको देखते हैं, इसको कहाँ कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेडलाइन, नो कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेडलाइन, कंप्लीट्स हिज रजिस्ट्रेशन, हिज तो नहीं होगा, शुड बी कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेडलाइन, नहीं, नो रिप्लेसमेंट नहीं, यहाँ इसका ऑप्शन होगा आपका, देखिए इट इज़ इसेंशियल दैट कि एवरी एथलीट कंप्लीट्स, एवरी एथलीट कंप्लीट्स नहीं होगा, कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन बिफोर डेडलाइन, कंप्लीट यहाँ होगा, एवरी के पहले यहाँ सिंगुलर होता है, एवरी मन प्रत्येक के लिए यूज होता है, तो कंप्लीट्स नहीं, यहाँ इस एस नहीं, कंप्लीट होगा, कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेडलाइन, बी यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब कि एथलीट एवरी, और ये आपको ये पढ़ाएंगे एक बार, एवरी के पहले, इस एवरी के बाद कौन सा वर्ब आता है, एवरी वन के बाद ये सब आता है, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एवरी के बाद कंप्लीट होगा, ना कि कंप्लीट्स होगा। आगे देखते हैं 24 में क्या है, ही नैरोली स्केप टू बी अरेस्टेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स वाइल क्रॉसिंग द चेक पॉइंट, कहते क्या है, नॉर्मली स्केप्ड, वह बहुत नॉर्मली स्केप्ड हुआ, बी इंटरेस्टेड टू बी अरेस्टेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स, स्केप्ड हुआ टू बी अरेस्टेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स के द्वारा अरेस्टेड होने से, तो बीइंग यहाँ तो साफ गलत दिखाई दे रहा है कि टू बी नहीं होगा, यहाँ दूसरा होगा बीइंग होगा। देखते हैं बीइंग कहाँ लिखा हुआ इसमें, बीइंग अरेस्टेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स, यहाँ ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, टू नहीं इसमें लगेगा, जब बीइंग है तो कंपेयर, he narrowly escaped being arrested by the border guards, being होगा ए इसका ऑप्शन, being arrested by the border guards, 24 के ए ऑप्शन करेक्ट। 25 क्या है, डिस्पाइट इनिशियल रेसिस्टेंस द विलेज एल्डर्स इवेंचुअली केम राउंड द प्रोपोजल, डिस्पाइट इनिशियल रेसिस्टेंस द विलेज एल्डर्स इवेंचुअली केम राउंड द प्रोपोजल, केम राउंड द प्रोपोजल, डिस्पाइट इनिशियल रेसिस्टेंस के बावजूद भी द विलेज एल्डर्स जो है, जो गांव के एल्डर्स हैं, इवेंचुअली केम राउंड द प्रोपोजल, केम अराउंड टू द प्रोपोजल होगा, केम अक्रॉस नहीं होगा, केम टुवार्ड भी नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन बी होगा, केम अराउंड टू द प्रोपोजल, बी 25 के बी ऑप्शन इज करेक्ट। आ 36 38 देखते हैं, गलत है, 25 के बाद यहाँ 26 और 28 तक के देखते हैं, गलत लिखे, सॉरी। In the following question, a sentence is given with a few highlighted words that may be incorrectly placed. Rearrange these words to form a sentence that is both grammatically correct and contextually meaningful. Then choose the option that represents the correct sequence of the highlighted words. देखते हैं कि the stock sector closed higher today, driven by gains in the banking market. इसमें कहाँ क्या क्या होना चाहिए, कैसे चेंज होना चाहिए, देखिए आप सेंटेंस पढ़िए ध्यान से। द स्टॉक सेक्टर, स्टॉक के बाद सेक्टर नहीं होगा, स्टॉक मार्केट आएगा, द स्टॉक मार्केट क्लोज्ड हायर टुडे, क्लोज्ड हायर टुडे, स्टॉक मार्केट ने क्लोज्ड हायर टुडे, द स्टॉक मार्केट में, इसको मिलाते हैं क्या है, द स्टॉक सेक्टर यहाँ जानते हैं क्या होगा, यहाँ होगा द स्टॉक
गेंस क्लोज्ड हायर टुडे, द स्टॉक गेन क्लोज्ड हायर टुडे, यहाँ गेंस होगा, यहाँ होगा बी, क्लोज टुडे एंड ड्रिवन बाय मार्केट, ड्रिवन बाय मार्केट, और इन द बैंकिंग सेक्टर यानी लास्ट में ए होगा, बी तब ए, बी तब ए नहीं होगा, बी होगा तब सी होगा तब ए होगा। यहाँ दो ही चीज़ बदलेगा, द स्टॉक मार्केट क्लोज्ड हायर टुडे ड्रिवन बाय गेंस इन द बैंकिंग सेक्टर, तो यहाँ सी बी ए होगा, सी बी ए यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप देखिए द स्टॉक सेक्टर क्लोज्ड हायर टुडे ड्रिवन बाय, आप सेंटेंस अब ध्यान से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि द स्टॉक मार्केट होगा क्लोज्ड हायर टुडे ड्रिवन बाय गेंस, और इन द बैंकिंग सेक्टर होगा, बैंकिंग मार्केट नहीं, बैंकिंग सेक्टर होता है। ए और सी रिप्लेस कर दीजिए, ए के जगह ए को सी से रिप्लेस कीजिए तो वहाँ आ जाएगा मार्केट, यहाँ आ जाएगा सेक्टर, तो सी बी ए हो जाएगा, सी बी ए डी में है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हुआ 26 का। 27 क्या है आपका, देखते हैं कि हेवी रेनफॉल कॉज्ड डिलेज इन सेवरल एयरपोर्ट डिपार्टिंग फ्रॉम द सिटी फ्लाइट्स, तो आपको देखिए हेवी रेनफॉल, रेनफॉल तो सही है, रेनफॉल, हेवी रेनफॉल कॉज्ड डिलेज इन सेवरल फ्लाइट्स, यानी सी, ए के बाद सी, ए के बाद होगा सी, ए के बाद सी, और फिर यहाँ हो जाएगा बी, डिपार्टिंग फ्रॉम द सिटी एयरपोर्ट, तो यहाँ ए के ए सी बी कहाँ है, सी में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। इसलिए हेवी रेनफॉल कॉज डिले इन द सेवरल फ्लाइट्स डिपार्टिंग फ्रॉम द सिटी एयरपोर्ट। 28 में क्या है, ख़त्म हो गया, इतना ही है। 28 में है द न्यू पॉलिसी एरिया to improve traffic congestion and reduce air quality in urban areas, तो the new policy aims to improve, the new policy का areas नहीं होगा, new policy aims होगा, to improve नहीं होगा, to reduce होगा, the new policy aims माने D reduce होगा, C to reduce traffic congestion and इम्प्रूव यानी डी सी बी, यानी अब सी को देखिए, सी में मिल रहा है, डी सी बी आ रहा है, डी सी बी एयर क्वालिटी इन अर्बन एरियाज होगा, डी सी बी ए, यानी सी ऑप्शन होगा, यानी द न्यू पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन अर्बन एरियाज, यानी डी सी बी ए, इसका करेक्ट आंसर होगा डी सी बी ए यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मित्रों इतना ही हम आपको आज आपको ये कैसा लगा सेशन, आप इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और किसी तरह का बदलाव चाहते हैं तो हम इसके लिए तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए जो भी हम पढ़ाए हैं। अगर नहीं कहीं समझ में आपको आता है बंधु, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं ये कैसे हुआ और हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगेन आई वेलकम टू watch my video and kindly subscribe my channel and please do share. Thank you.